The first official reaction, and a very strong one. This is the Moradabad commissioner, whose name is Anjaneya Kumar Singh. One, he has said that the probe is underway, and also the fact that it cannot be ruled out that those who came with stones were possibly instigated. Unko uksaya gaya. And also, he's also said that this also cannot be ruled out, that possibly there was some sort of planning that went to this kind of, mobilization on the ground. Let me go across to my colleague Pradeep Datta, who's joining us. The first official reaction on the kind of violence that broke out in Sambhal, Pradeep, comes in from the commissioner, who is saying that it cannot be ruled out that those who came there with stones, they were all young, and it cannot be ruled out that somebody possibly must have instigated them. Also, there are now questions being asked because the confirmation has come of 3 deaths. So obviously, the police is facing some kind of questions, but there the police also says that please check all the CCTV footage, please check all the video recording, because media was present, it's all on camera. Tear gas shells were fired, and now an investigation will only go on to prove what in fact led to the death of 3 youngsters. What's the latest when it comes to the investigation that's happening into the violence, Pradeep? See, right now I'm here at Additional SP office here in Moradabad, and Commissioner of Moradabad is having a meeting with all the officials, and they are discussing pros and cons so that they can ensure that law and order situation is maintained. Though the life is limping back to normalcy for the last 2-3 hours, there had been no violence in that area. But yes, certain precautionary measures have been taken. Internet has been suspended. We got to know from the Commissioner that 3 people have lost their lives, and therefore Commissioner of Moradabad, he said yes, instigate these youngsters. When today morning the team came to survey Jama Masjid Mosque, that was the time when some people gathered there. Okay. The option, but they had to resort to... Let me go take this to Abhishek, because viewers, the latest update is that internet for now has been suspended. Law and order mechanism on the ground is in fact taking care to ensure that there is no other kind of a flare-up. All steps are being taken to ensure the situation is back to normalcy. There is security deployment on the ground. Let me go back to Abhishek. Abhishek, हमने अभी जो पहला ऑफिशियल रिएक्शन है मुरादाबाद के कमिश्नर का, उनसे ये सुना, कुछ सवाल उन्होंने भी उठाए कि इतने सारे लोग जो आ गए थे, वो ना वो नमाज पढ़ने का टाइम था. उन्होंने ये भी पूछा कि इतने सारे लोग पत्थर लेके वहां पे क्यों आ गए, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि जो इमाम हैं उन्होंने भी इस चीज की रजामंदी दी थी कि सर्वे हो जाए, क्योंकि कोर्ट मैंडेटेड था. तो ऐसे तमाम सारी चीजों पे को हाईलाइट किया गया ऑफिशियल्स की तरफ से. इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, आपके पास क्या लेटेस्ट जानकारी है व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टिगेशन दैट हैज स्टार्टेड राइट नाउ? देखिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट है, और ये बड़ा सवाल है कि आखिर सुबह 7 बजे से 11 बजे का वक्त था जब ये पूरा का पूरा सर्वे होना था, और जो इमाम है मस्जिद के, उनकी सहमति के साथ ये पूरा का पूरा सर्वे शुरू हुआ था. और इसके पहले भी एक बार सर्वे जो है वो खत्म हुआ था, और उस दिन बड़े शांति के साथ हुआ था. उस दिन किसी भी तरीके से कोई तनाव नहीं था, किस तरह का कोई पथराव नहीं हुआ था. लेकिन आज सुबह जैसे ही वहां सर्वे की टीम पहुंची थी, अंदर गई थी, और जो उन्होंने अपना काम शुरू किया था सर्वे का, वैसे ही भीड़ इकट्ठी होने लगी. और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये भीड़ पत्थरबाजी में तब्दील हो गई, और ताबड़तोड़ पत्थर जो है वो पुलिस के ऊपर चलने शुरू हो गए. पुलिस ने आनन फानन में जो लाठी का चार्ज का प्रयोग किया, हल्का बल का प्रयोग किया शुरुआत में, और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की. लेकिन जब पत्थरबाजी जोर होने लगी, जब गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया लोगों ने वहां जो मौजूद थे, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स थे उसमें आग लगा दिया गया, जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको तोड़ा गया. उसके बाद जो पुलिस ने बल अपना प्रयोग किया, और उसके बाद जो भीड़ है के लिए, पर क्या आप हमें यह भी जानकारी दे सकते हैं कि उस वक्त जब ये पत्थरबाजी हुई तब ग्राउंड पे कितने लोग थे, और आप ग्राउंड पे हैं, आपने पूरा सिचुएशन देखा, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पत्थर चले?
देखिए बिल्कुल वहां अगर आप देखेंगे पूरे इलाके को तो वहां पर जो घर है नए वो बनाए जा रहे थे और जो घर के कारण जो ईंट है जो पत्थर है वो लाके रखा गया था। बेसिकली जो बड़े वाले ईंट है जो ब्रिक्स थे उनको तोड़ा गया था बकायदा और उनका भी इस्तेमाल इस पत्थरबाजी में किया गया था। इसके अलावा घर बनाने में जिन ईंटों का इस्तेमाल होता है उनका इस्तेमाल किया गया था पत्थरबाजों के द्वारा। और इसके अलावा जो घर के छत हैं उनसे भी ये खबर मिली है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि वहां से भी कुछ पत्थर जो है वो चलाए गए थे। तो आखिर क्या ये सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था? क्या ऑलरेडी इसकी प्लानिंग की गई थी? क्या ये स्क्रिप्टेड प्रोजेक्ट था जिसको आज अंजाम दिया गया था? बड़ा सवाल है। पुलिस भी ये कह रही है कि ये अचानक से तो नहीं हो सकता है, ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इस बात से पुलिस रूल आउट नहीं कर रही है और यही कारण है कि अभी जो मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इस बात की जांच करेंगे। अगर कोई भी वहां जो मौजूद था वो कोई नमाज पढ़ने नहीं गया था, ना ही वहां पे आंखों देखी हाल जो है वो किसी को बताने गया था, ना देखने गया था, तो आखिर वहां पे क्यों भीड़ इकट्ठा हुई थी? इसका भी जवाब उन सभी लोगों से पूछा जाएगा जो वहां पे मौजूद थे और उन सभी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो इस पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे। पुलिस ने फिलहाल 15 लोगों को अभी तक डिटेन किया है, उनसे पूछताछ जारी है और जो भी लोग इस पूरे रडार में आएंगे उनको बिल्कुल जो पुलिस है वो डिटेन करके पूछताछ करेगी। जी Okay. 15 detentions so far, viewers, and the police has also confirmed that everything now is in the realm of investigation. They will be questioning those who were involved in the stone pelting to find out what led to the kind of build-up near the survey area. And amidst the investigation, the police, which is trying to ensure that the situation limps back to normalcy in Sambhal, there is also a lot of politics that's playing out. We have leaders of the Samajwadi Party and senior leaders like Ram Gopal Yadav, who has gone on to make a very, very controversial comment. Ram Gopal Yadav says, agar booth capture hoga, to patthar to chalenge. Many in the BJP are now claiming that this comment is nothing but an attempt to legitimize an act of violence. सर संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहां पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश हो। सर संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहां पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश हो। So after the Patthar to Chalenge remark by Ram Gopal Yadav, who's not just one of the senior most leaders of the Samajwadi Party, but also the uncle of Akhilesh Yadav, it is Akhilesh Yadav himself who is blaming the Bharatiya Janata Party for the violence that broke out in Sambhal. जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा